it started about then Krishna. So that was the first thing which we discussed already. Now the second thing is going to start about the different ladders of bhakti, which we are going to start now. Verse number 8, 9, 10, 11, and 12. Out of which verse number 12 is the most complicated verse that we'll discuss a little more in detail. Then from verse number 13 to 20, which we'll be covering tomorrow, is very, very simple. It's Krishna's expectation from his devotees, what qualities he likes in devotees. That is the third aspect, which we are going to see. Okay, so let us begin from verse number 8. So this is the ladder, this descending ladder of bhakti from here. Multiples level of bhakti will be told over here. So what is this section all about? This section is all about mercy of Krishna. So Krishna being very, very merciful, he wants some reason to give us mercy. So that is what all this is there. So he is broadening his vision of mercy. He is broadening his field of mercy. That I want to give my mercy to everyone, even if somebody is doing something. So that is the compassionate nature of Krishna can be shown, can be seen over here. The broad-mindedness of Krishna can be seen in these verses. His eagerness to show mercy to the fallen souls is being seen in these verses. And so that's all Krishna is describing. He wants to make everything in the fold of bhakti. आप बोले यार ये भक्ति कैसे है ये श्लोक पढ़ के? But Krishna is saying नहीं नहीं ठीक है चल जाएगा ये भी चलेगा. So his eagerness to help us is much more than our eagerness to take help from him. He is so much eager. So these all verses will show his compassion on living entities, how he is ever ready. He is always ever ready to show mercy to the fallen souls. So he starts with the highest level, 12.8. So it's a descending ladder from here. From the highest level, then he will go below. And if you cannot do this, you do this. If you cannot do this, do this. So verse number 8 and 9 are very, very important verses. It's bhakti with internal senses. It's bhakti with internal senses, which we are going to see now. Okay, so let's see the verse first. I hope it is little clear. The PDF, I could not make it very good, but I hope it's clear. Devotees, it's clear a little bit. What are you able to see? Yes, Guruji. Okay, ठीक है. मयि एव मन आधिष्ठ्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशया. Yes, read the translation. Just fix your mind upon the Supreme Personality of Godhead and engage all your intelligence in me. Thus, you will live in me always without a doubt. So this is the highest level which Krishna is talking about, is pure devotional service. Bhakti with the internal senses. So here it talks about mind and it talks about intelligence. Mai eva, me alone. Mana adhishtvan. You fix your mind in me. This is a level 1. Mai buddhim niveshaya. And you put your intelligence in me. Apply your intelligence in me. Nivashishyasi mai eva. By doing this, you will live in me. You will reside in me. And you will always be with me. Ata urdhvam. Of this, after this, na samshaya. There is no doubt about it. So this is the art of Krishna consciousness, which Prabhupada talks about. By engaging your mind and intelligence in Krishna, that is the art of Krishna consciousness. So this is the highest platform of Krishna consciousness, that your mind and intelligence is always fixed in Krishna. Okay, so let's see a little more deeper into this verse. So we live where a subtle body lives, not where your gross body is. So this is very, very important. So here Krishna is talking about a subtle body. Where is your subtle body? So we may be sitting here in Bhakti Shastri class, but the thought may be, आज प्रसादम menu में क्या है नीचे? आज प्रसादम का क्या? So our subtle body is in प्रसादम hall. So Krishna wants आपका subtle body मुझे चाहिए. आपका मुझे mind और intelligence मुझे चाहिए. So the example is given of an addict. So although he is working whole day, he may be here, but if he is addicted to something, like if he is addicted to
smoking, drinking. He would be finding ways कि मैं कैसे smoke or drink करके आऊँ. And between the classes, he will go and he will smoke. Sometimes we see teachers in schools and colleges. Because their addict, their consciousness, their subtle body is looking for that. Similarly, when a woman is there and she has a paramour, so although she is working, but her mind is always absorbed in the thoughts of the paramour. So she is always thinking how I can go and meet him. So the subtle body is with him. It's not with the husband. The subtle body is with the paramour. So Krishna says, where is your subtle body? I need your subtle body. So that is the level of a pure devotion. So Srila Prabhupada never left Vrindavan. So Srila Prabhupada writes, if you see, I am feeling separation from Vrindavan. So although you can take a pure devotee out from Vrindavan, you cannot take out Vrindavan from a pure devotee. So his subtle body is fully in Vrindavan, fully absorbed in Vrindavan. So this verse is two levels. First, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says this. The first level is called Smarana Atmika Buddhi. And the second level is called Manana Atmika Buddhi. There's a two level, 8A, 8B, which I mentioned over here. Smarana Atmika Buddhi is through the mind, you are constantly remembering Krishna. This is higher than Manana Atmika Buddhi. That is through intelligence you are contemplating on him. So the first is a spontaneous remembrance of Krishna, which is coming. Therefore, it's called Smarana Atmika Buddhi, which is given a higher stage, which you do through the mind. And second is your conscious choice to remember Krishna. And that is through intelligence. Through intelligence, you are contemplating on Krishna. That is your consciously you are doing it. So that is Manana Atmika Buddhi. So that is considered higher. Okay, so now let's come to purport of Srila Prabhupada, which is very, very important. Prabhupada's purport. One who is engaged in Lord Krishna's devotional service lives in a direct relationship with the Supreme Lord. So there is no doubt that his position is transcendental from the very beginning. A devotee does not live on the material plane, he lives in Krishna. So that is what the analogy is given as iron rod put in fire. So he also becomes fiery. So this is his spiritual platform. He is acting on a spiritual platform. The holy name of the Lord and the Lord are not different. Therefore, when a devotee chants Hare Krishna, Krishna and his eternal potency are dancing on the tongue of the devotee. So अभी हम सबने chanting किया तो हम ये जान सकते हैं Lord and his eternal potency is dancing on our tongue. जितना faith है हमको. When we offer Krishna food, Krishna directly accepts these eatables and the devotee becomes Krishnized by eating the remnants. So this is Jivan Mukta stage. So in Nectar of Devotion, Srila Rupa Goswami says this verse, Iha asya hare dase karmana mansagira nikhilasya abhivasthasu Jivan Mukta sauchyate. He is living Mukta. Jivan Mukta is a different stage only. He is living in this world, but he is a Mukta person. Because Nikhilasya Stashu Jivan Mukta Sen. Iha yasya harir dasya. He is a servant of the Lord. He is considered himself a servant of the Lord. Karmana manasa gira. Karmana, his work, manasa, his mind, and gira, his words. All three are engaged in Krishna service. So he is Jivan Mukta stage. One who does not engage in such service cannot understand how this is so. Although this is a process recommended in Bhagavad Gita and other Vedic literatures. So that's how this is a higher stage where your mind and your intelligence is fully fixed in Krishna. So Krishna is telling, Vishwanath Chakravarti Thakur is telling, since bhakti is the best, please perform only bhakti. Krishna is telling, because now till now. So you see, now what is happening is from chapter number 1 till chapter number 6, there was a gradual rise where Krishna was taking us to bhakti, culminating it Yoginam api sarvesham. That verse, 6.47. Yoginam api sarvesham. It's like going up. That from this, now you go to bhakti. Now in bhakti, he begins to tell and begin to rise his standards in bhakti. And, which we saw like 11th chapter and 12th chapter starting, he like the pinnacle of bhakti he reached. That you have to do mat parha, everything is for me. You do everything, you think of me, you mat parha, mat karma, everything for me. That is the highest perfection of bhakti. And he is keeping, this is the highest epitome. Your mind and intelligence fully fixed on the epitome of bhakti. So now from here, he will gradually go down. So it's like a curve, like going this and now he will go little down.
So therefore Vishwanath Chakravarti Thakur say, now you have reached the highest thing, that is perform bhakti. The word eva exclude the impersonal aspect of the Lord. The word eva, which over here is, concentrate your mind on me only, remember only me, that form of Shyam Sundar with yellow cloth and forest garland. विश्वनाथ चक्रवर्ती थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि आप एकदम बढ़िया से मेरे को रिमेम्बर करिए. एक और एक्सप्लेनेशन आता है जहां पर ये बताते हैं कि व्हेन रिमेम्बरिंग मी मीन्स मेरे पास टाइम को रिमेम्बर करिए, एंड कंटेम्पलेटिंग ऑन मी मीन्स स्क्रिप्चर्स में जो मेरे फॉर्म का कंटेम्पलेशन दिया हुआ है उसको कंटेम्पलेट करते हुए मेरे फॉर्म को कंटेम्पलेट करिए. तो यहाँ पर वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको बोल रहे हैं with yellow cloth and forest garland, and not the impersonal Brahman. Also fix your intelligence, which has the power of discrimination, upon me. This means to continue reflect on the statements of scripture using intelligence, which will result in meditation. Such contemplation is called manana. Thus you will again reside near me, attain residence near me. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur is saying, आप भी अपना घर मेरे बगल में बना लेंगे, आप भगवत धाम आ जाएंगे, कहने का मतलब है. Thus you will attain residence near me, you will come to Bhagavad Dham. So that is what Srila Vishwanath Chakravarti Thakur is explaining of this verse. Now let us come to this 9th verse. So this 9th verse is called Abhyas Rupa Bhakti. So in 8 there were 2 types of bhakti, Smarana Atmika Bhakti and Manana Atmika Bhakti. And this is Abhyas Rupa Bhakti. So this is also performed through internal senses. So that was performed through mind and intelligence. This is also performed through internal senses. Okay, so 12.9. अथा चित्ता समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय. Okay, read the translation. Yes, some devotee read translation. My dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principles of Bhakti Yoga. In this way, develop a desire to attain me. So this is in short is telling about sadhana bhakti. So currently this is our position where we cannot fix our mind without deviation on Krishna. Mind tends to go here and there. Then he is telling at least you follow the regulative principles of bhakti with a desire to attain me. So this is important, which Krishna is telling over here. Atha chittam, अगर if अगर अपना माइंड समाधातुम सम्यक रूप से मेरे ऊपर नहीं लगा पाते, हमेशा नहीं लगा पाते, न स्नोशी नहीं कर पा रहे, मई स्थिरम स्टेडिली कंटिन्यूअस आप मेरे ऊपर नहीं लगा पाते, तो अभ्यास योगे ना, बाय प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस यू डू अभ्यास. और कौन सा वर्स है जिसमें कृष्णा ये वर्ड यूज करते हैं अभ्यास? एनी वर्स यू रिमेम्बर? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते. करेक्ट. सो वेयर कृष्णा टॉक्स अबाउट माइंड, व्हेन चंचलम ही मना, कृष्णा का सोल्यूशन कृष्णा बताते हैं, तो वहां बताते हैं अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते. देयर आल्सो ही इज टॉकिंग अबाउट अभ्यास. You have to have practiced this devotional service. So the practice of devotional service. Tata then, most important, mam इच्छाप्तुम धनंजया, develop a desire to get me. वहां बोला वो आपको मिल जाएगा, sure है. There is no doubt you will get me. You will live with me. You will have a residence near me. Here Krishna is telling, develop a desire to obtain me. Hey Dhananjay. So Dhananjay word use कर रहे हैं कृष्णा, because Dhananjay is one, because Arjuna collected wealth for Rashtriya from so many places. So he's telling, now you collect the supreme wealth, which is attraction to Krishna. Hey Dhananjay, अगर आप उस वेल्थ नहीं है आपके पास, एटलीस्ट इच्छा करो उस वेल्थ को पाने की. वो वेल्थ क्या है? सुप्रीम वेल्थ इज अट्रैक्शन टू कृष्ण. सो डेवलप दैट. ओके, सो माइंड में स्टे अवे बट नॉट स्टे अवे. दैट इज द पॉइंट ओवर हियर. तो माइंड आपका इधर उधर जा सकता है, बट अभ्यास योगा ना मीन्स उसको वापस लेके आओ. माइंड जा रहा है, वापस लेके आओ. सो दैट इज व्हाट इज अभ्यास योगा. So currently we don't have a strong desire to attain Krishna. Krishna है, but to
have a feeling that I need Krishna in my life, वो अभी weak है. So this strong desire to attain Krishna is the perfection of life. And Krishna is telling, by this abhyas which we are doing, or bhakti yoga, will be able to develop this desire to have Krishna. So fix the mind on Krishna as a discipline. तो साधना कार्ड जरूर भरिए. साधना कार्ड अगर आप भरेंगे तो that is the method of fixing the mind on Krishna. So that is the process mentioned over here. Okay, so let's go to. So Srila Baldev Vidya Bhushan says a very nice thing over here. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, sorry. Otherwise, if you are not able to concentrate your mind on me steadily, then seek to attain me by the method of repetition of fixing your mind on me. So this is very important word, repetition of fixing your mind. So this process has to be repeated of again and again fixing our mind of Krishna. There's an endeavor required from our side. So Srila Baldev Vidya Bhushan says, withdraw the mind from sense objects and again fix on me. This method has to be repeated. Okay, Srila Prabhupada's purport. So Prabhupada says that Bhakti Yoga is a purification of senses. At the present moment in material existence, the senses are always impure, being engaged in the sense gratification. But by the practice of Bhakti Yoga, these senses can become purified. And in the purified state, they come directly in the contact with the Supreme Lord. In this material existence, I may be engaged in some service to some master, but I don't really lovingly serve my master. I simply serve to get some money. And the master also is not in love. He takes service from me and pays me. So there is no question of love. But in spiritual life, one must be elevated to the pure stage of love. So what is the pure stage of love, which was in the previous verse? That doing service out of love for Guru and Krishna. That you are so grateful, so indebted to Guru and Krishna. Their memory is so much engrossed in your heart that you just want to serve them. That stage of love can be achieved by practice of devotional service performed with the present senses. So with the present senses, we perform the devotional service. Okay. To practice the regulative principle of Bhakti Yoga, now Prabhupada is mentioning practically what we have to do. So through this verse, now Prabhupada is going to explain. To practice the regulative principles of Bhakti Yoga, one should, under the guidance of an expert spiritual master, follow certain rules. So क्या rules हैं? One should rise early in the morning, take bath, enter the temple, offer prayers and chant Hare Krishna. Then collect flowers to offer the deity, cook foodstuff to offer the deity, take prasadam and so on. So Prabhupada ने कुछ लिख दिया है कि क्या है अभ्यास हमारे लिए. There are various rules and regulations which one should follow, and one should constantly hear Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam from pure devotees. This practice can help anyone rise to the level of love of Godhead, and then he is sure of his progress into the spiritual kingdom of God. This practice of Bhakti Yoga under rules and regulation with the direction of spiritual master will surely bring one to the stage of love of Godhead. Very simple. Prabhupada makes it very, very clear that you have to do all this practice, and under the expert spiritual master, under guidance, you have to practice, and then you will surely reach to the love of Godhead level. Okay. Now, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur adds on this, very nice. The Lord then speaks of a method to attain the state of remembrance mentioned above. That is in verse number 8. If one is unable to remember the Lord with no preparation, repeatedly withdrawing the mind when it goes here and there, and fixing the mind on me is called abhyas. By this method of abhyas yogena, endeavor to attain me. So previous was without any preparation, you are able to remember Krishna. But here there is an endeavor required, repeated endeavor required to remember the Lord. In common word, this means stop the movement of mind, which is like a river. Stop the movement of mind, which is like a river, cannot be controlled, and which gravitates to vague sense objects such as taste, and establish the mind's movement in my beautiful form and taste. O Dhananjana, having conquered many enemies, you have taken much wealth. Now conquering the mind, you take the treasure of meditation. कृष्ण बता रहे हैं कि अभी माइंड इधर उधर भाग रहा है, उसको रोको, लेके आओ मेरे ब्यूटीफुल फॉर्म पे मेडिटेट करो. Okay. So yes, again, Srila Baldev Vidya Bhushan is also mentioning that if you cannot offer your full consciousness with complete ease to me in such a way that it is steady,
then try to attain me by the fixation method. He calls it as a fixation method. Withdrawing the mind which wanders to other objects, gradually fix it on me and practice this repeatedly. Abhyas yogina. So this is the method. This is the second method. Second level now Krishna has come. Now the third level. This is bhakti with external senses now. So till verse number 9, 8 and 9, it was with internal senses, with your subtle body. Now it is with external senses. So work for Krishna. So what is the relationship? What is the link to 8 and 9? This shloka. As the mind is fickle like wind, one may not be able to restrain it even by practice. For then Krishna gives 10. So now, even by practice, sometimes it will become to always remember Krishna. Fixing becomes very, very tough. So now Krishna says, okay, then work for me. Because in working, may not be you will be able to remember me during work, but the work is for me. So then that will benefit you. Mira, yes. So let's see this verse number 10. Abhyase api asamarthosi mat karma paramo bhava madartham api karmani gurman siddham apyapsasi. Yes, read the translation. If you cannot practice the regulations of Bhakti Yoga, then just try to work for me, because by working for me, you will come to the perfect stage. So try to work for me. So here the word is abhyas api asamarthosi. अब अभ्यास करने में भी असमर्थ हो यदि मत कर्म परमो भवा. सो दो वर्ड हैं, एक मत परा और एक मत कर्म परा. दोनों में डिफरेंस है. सो मत परा जो वर्ड यूज हुआ है पिछले कई वर्षों में यूज हुआ है, वो प्योर डिवोशन सर्विस है. मत परा, आई एम एवरीथिंग फॉर यू, दिस इज योर कंसिडरेशन, यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर मी, एवरीथिंग योर लाइफ इज फॉर मी. मत कर्म परमा, now you're working for me, your working aspect is for me. You're not able to fix your mind in me, but at least you have taken up some work which is for me. Mad artham, for my sake. Api karmani, आप काम कर रहे हो. Gurvam siddhyasya avse, you will achieve perfection. Siddhim, you will achieve perfection. So this siddhim is not the siddhim of that siddhi. वो आता है ना मनुष्य नाम सहस्र शुकश्य मिदते सिद्धे. This is not that siddhi it talks about. Ashta siddhi and all. It is talking to the previous level. Purvam siddhim avapsasi. You will achieve perform perfection. Perfection of what? That you will be able to remember me. You will be able to meditate on me. That level you will be able to attain. Okay. Okay, Srila Prabhupada's purport. Then we'll go and see another thing. One is not able even to practice the regulative principles of Bhakti Yoga under the guidance of spiritual master, can still be drawn to this perfection stage, ye wale pe, by working for the Supreme Lord. Okay. The same work, however, can be performed for the satisfaction of Krishna, and that is spiritual activity. If one has sufficient money, now Prabhupada gives a lot of example that what you are doing, working. So over here, Prabhupada gives a very nice thing. One may be sympathetic to the propagation of Krishna consciousness. There are many devotees who are engaged in the propagation of Krishna consciousness and they require help. So even if one cannot directly practice the regulative principles of Bhakti Yoga, then he can try to help some work. कोई प्रचार कर रहा है तो उसमें help कर रहे हैं. So Prabhupada is giving what kind of help you can do. Every endeavor requires land, capital, organization, and labor. Just as in business, one requires place to stay, some capital to use, some labor, some organization to expand. The only difference is that in materialism, one works for sense gratification. The same work, how can be performed for satisfaction Krishna, and that is spiritual activity. If one has sufficient money, he can help in building an office or temple for propagating Krishna consciousness, or he can help with publication. So ये सब Prabhupada example बता रहे हैं क्या-क्या आप कर सकते हैं भगवान के लिए. There are various fields of activity, and one should be interested in such activities. If one cannot sacrifice the result of his activity, the same person can still sacrifice some percentage to propagate Krishna consciousness. तो आप भले ही पहले वाला स्टेज नहीं कर पा रहे हो, ये वर्किंग फॉर कृष्णा कैन एलिवेट यू. तो हमारे बीच में एक एग्जांपल था, बहुत अच्छा था. तो एक डिवोटी थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा,
19 की बात है, नहीं 18 की बात है। 2018 की बात है। तो हमारे एक प्रेरणा डिवोटी थे वहां पर। तो लेकिन ज्यादा चैंटिंग वैंटिंग ज्यादा नहीं करते थे और प्रोग्राम्स में भी ज्यादा नहीं आते थे वो। लेकिन एक अच्छी क्वालिटी थी उनकी, बहुत अच्छी क्वालिटी। क्योंकि मेरी ट्रेन होती थी चौरी चौरा से, चौरी चौरा होती थी उस समय चलती थी। और वो शाम को 5 बजे यहाँ से चलती थी और रात के 1 1:30 बजे पहुंचाती थी वहाँ वॉइस में, मतलब बनारस। तो अब डिवोटीज के लिए बहुत टफ होता है उतने बजे कौन, और उस समय ऑटो ऑटोज भी ज्यादा नहीं मिलते थे। तो बहुत टफ होता था वहां से वॉइस आना। तो ये डिवोटी हॉस्टल में रहता था, तो 1 बजे तक तो वैसे नहीं सोते थे ये। तो 1 बजे ये बाइक लेके, उनको पता था कि आज रात प्रभु जी आने वाले हैं, तो वो बाइक लेके 1 बजे स्टेशन पहुंच जाता था। और बाइक से प्रभु जी को फिर मेरे साथ अच्युत मनपुर जी जाया करते थे, तो अच्युत मनपुर जी को लेके आता था। अच्युत मनपुर जी को बाइक पे लेके आता था रात को वॉइस में। मतलब प्रभु जी के साथ हम जाते थे, तो प्रभु जी को वो बाइक पे लेके आता था। ये उसका रेगुलर रेगुलर था, मतलब हर वीक में वो एक बार प्रभु जी को लेने जाएगा और फिर एक बार ड्रॉप करने जाएगा जब वो रिटर्न जाते हैं कानपुर। तो ऐसा करता था। सो एंड दिस वाज इनफ, दैट वाज हिज सर्विस। ही सेड आई लाइक दिस सर्विस, मैं यही सर्विस करूंगा। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा करता रहा 1 साल 2 साल 3 साल वही करता रहा, यही सेवा। और फिर उसका बैंगलोर में जॉब लग गया। बैंगलोर में जॉब लग के वो डिवोटीज के एसोसिएशन में चला गया और फिर 16 वाला स्टार्ट कर दिया उसने, 16 राउंड स्टार्ट कर दिया। तो मैंने देखा उसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कहाँ से वो कुछ नहीं करता था और कैसे सेवा ने उसको इतना वो दे दिया कि वो 16 राउंडर बन गया। सो दैट्स हाउ वन कैन प्रैक्टिस इट। हाँ, सो what Vishnu, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur is telling, reframing this shloka. Become engaged in my supreme activities, in activities meant for the highest benefit. Mat karma parama. Doing services such as hearing and singing about me, going to me, worshipping me, sweeping and worshipping, washing my temple, picking flowers. Eh, no, these are external activities of bhakti, even without remembrance of me, as previously described. तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं कि these are the activities which are directly related to Krishna. तो हो सकता है आप इन एक्टिविटीज को करते हुए आपका रिमेम्बरेंस नहीं है कृष्णा का, लेकिन क्योंकि ये कृष्णा से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो आपको बेनिफिट करेंगी। इवन विदाउट रिमेम्बरेंस ऑफ मी एज प्रीवियसली डिस्क्राइब यू विल अटेन परफेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग वन ऑफ माय एस्टेट्स इन प्रेमा। तो इस स्टेज पे आप पहुंच सकते हो अगर भगवान की हुई एक्टिविटीज में आप लगते हो। तो राय श्याम प्रभु बताते हैं वी शुड डू मीनियल सर्विसेज। तो एक डिवोटी ने राय श्याम प्रभु से पूछा कि प्रभु जी कभी कभी हम हाँ स्वीपिंग करते हैं और हम इतना अच्छा स्वीपिंग करते हैं, ग्रूमिंग और स्वीपिंग करते हैं कि हम प्राउड हो जाएंगे कि हमने कितना अच्छा ग्रूमिंग किया। राजश्याम, डोंट वरी, द नेचर ऑफ एक्टिविटी इज सच दैट इट विल मेक यू हम्बल। भले ही आपको प्राइड आने लग गया कि मैं बहुत अच्छे से साफ किया हूँ, कोई टेंशन मत लो। हैं, एक डिवोटी प्लेट लेके आ रहा होगा, एक गिर जाएगा उसके, रस गिर जाएगा उसके प्लेट से, तिंग, और क्या कर दिया, रस गिरा दिया। हम्म तो आपको हम्बल होना ही पड़ेगा। सो नेचर ऑफ दीज एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कृष्णा इज दैट इट विल लीड टू रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। ओके ओके, सो नाउ बिफोर गोइंग टू 11, 11 is also a direct process. Okay, we'll read 11, then we'll go to a very important aspect. So now till 11, it's a very direct method. It's a very direct method of worship to Lord. सी अभी लॉर्ड ने पहले मन से चालू किया, इंटेलिजेंस, फिर अगर दूर जाता है इधर तो उसको लेके अभ्यास योग पे आए, और फिर वो भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट मेरे लिए कर्म करो। एंड देन 11th पे तो बाप रे बाप पूरा ब्रॉड माइंडेडनेस ही कर दिया। मतलब प्रभुपाद ने तो और ज्यादा कर दिया है, कृष्णा ने भी और चैनल खोल दिया भक्ति के लिए। तो ये भी भक्ति के लिम्स में है। दिस इज लैडर ऑफ भक्ति, डिफरेंट लेवल्स ऑफ भक्ति, ये सब अभी भक्ति में चल रहा है। ओके, अथेतद् अपि असक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फलत्यागं तथा पूर्वं यतात्मा मा यतात्मवान्। Yes, read the translation. If, however, you are unable to work in this consciousness of me, then try to act giving up all results of your work and try to be self-situated.
तो ये अब एक और लेवल आ गया है। कृष्णा बोल रहे हैं ठीक है, अगर तुम मेरे वाले एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व नहीं हो, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग या डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड हो, तो जो कर्म कर रहे हो उसके फल को त्याग करो। हम्म सर्व कर्म फल त्यागम, वेरी ब्रॉड, डू समथिंग but don't remain attached to the results. So what he is telling over here, become selfless, become selfless. Act giving up the results of your work and try to be ye atmavan, yat kuru yat atmavan. So not self conscious कि सब कुछ मैं अपने लिए करूंगा ये, बट सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ये आपको लेके जाएगा। जब हम सेल्फलेस बनते हैं, अपने रिजल्ट्स को किसी को ऑफर करते हैं, उस सेल्फलेसनेस से देयर इज एन एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। उस एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस से आपको वो क्वालिफिकेशन मिलेगा जिसमें आप मेरे को रिमेम्बर कर सकते हो। सो दिस वर्स इज वेरी क्लोज टू भक्ति, भगवत अर्पिता निष्काम कर्म योग। तो वो अपना ऑफर कर रहा है सब कुछ, लेकिन वो भगवान को बस ऑफर नहीं कर रहा। वेरी स्पेसिफिक केस, वेरी क्लोज टू भक्ति, भगवत अर्पिता होना चाहिए उसको। अभी वो निष्काम कर्म योग कर रहा है, वो अपना कुछ एक्टिविटीज है उसके रिजल्ट्स को ऑफर कर रहा है, लेकिन भगवान को ऑफर नहीं कर रहा है, लेकिन सेल्फलेस हो रहा है। वही अगर वो भगवान को टर्न कर जाए तो वो भक्ति बन जाता है। सो यहाँ पर हाँ, सो कृष्णा सेज एटलीस्ट बिगिन गिविंग, एटलीस्ट आप देना चालू करें। मतलब इतना ब्रॉड माइंडेड कृष्णा हो गए, ठीक है ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते एटलीस्ट अगर है। सो कृष्णा इज ट्राइंग टू अकोमोडेट दोज ऑल्सो दोज हु आर नॉट अकोमोडेटिंग कृष्णा। क्या अमेजिंग है ना। कृष्णा इज ट्राइंग टू अकोमोडेट दोज ऑल्सो हु आर नॉट अकोमोडेटिंग कृष्णा। कृष्णा को लाइफ में नहीं, कृष्णा बोल रहे ठीक है आप कुछ तो करिए, कुछ तो सेल्फलेस होइए, चैरिटी करिए, कुछ करिए। तो एक बार एक सेठ जाते हैं घर पे और बोलते हैं भिक्षाम देही माते भिक्षाम देही। तो वो लेडी का उस दिन अपने हस्बैंड से फाइट हुआ होता है, तो लेडी बहुत गुस्सा ही रहती है, क्या ये साधु लोग आ जाते हैं मांगने मांगने के लिए, घर में ऑलरेडी इतना टेंशन हो रहा है। तो बोले कुछ नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। तो साधु बोलता है माते कुछ तो दे दीजिए, कुछ तो दे दीजिए। तो वो औरत बहुत गुस्सा आ जाती है, तो उसने अभी खाना बनाया था तो उसका राख पड़ी हुई थी, तो उसने राख उठाई और राख जाके उसके जो बाउल था जिसमें बेगिंग बाउल था उसमें जाके डाल दे, ले ये ले, यही तेरा भिक्षा है। तो जो साधु है बहुत खुश हो जाता है, जय हो आपने देना चालू कर दिया। सो दैट इज द स्पिरिट ऑफ कृष्णा। कृष्णा इज टेलिंग एटलीस्ट यू गिव समथिंग। सो कल्टिवेट द स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसनेस, दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस व्हिच कृष्णा इज डूइंग। और प्रपात तो मतलब मत पूछो, प्रपात तो और ज्यादा सिंपैथेटिक हो जाते हैं। तो प्रपात बोल रहे हैं हो सकता है कि कोई कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी से सिंपैथाइज ना हो पाए क्योंकि सोशल है, फेमिलियर है, रिलीजियस कंसिडरेशन है, दूसरे रिलीजन का है, नहीं कर पा रहा है कुछ डायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज को नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी फैमिली उसको रोक रही है, एंड मेनी अदर डिफिकल्टीज, बहुत सारी डिफिकल्टीज हो सकती। तो अगर कोई इन सब में प्रॉब्लम में है, ही सैक्रिफाइस द accumulated result of his activities to some good cause, तो किसी गुड कॉज को आप उसको दीजिए। सो प्रभात देखते हैं जैसे फुल मून पूर्णिमा डे पे बोला गया है कि आप कुछ करिए। उससे 10 1 में ग्रेजुअली बिकम एलिवेटेड टू द स्टेट ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान तक जाएगा। By the practice of giving up the fruits of an activities, one is sure to purify his mind gradually. उसका माइंड प्यूरिफाई होगा, and in that purified stage of mind, one becomes able to understand Krishna consciousness. So if one decides to sacrifice for the supreme cause, even if he does not know that the supreme cause is Krishna, he will come gradually to understand that Krishna is the supreme cause by the sacrificial method. So ये कृष्णा का प्लान है प्रभु उनको एलिवेट करने का। सो कभी कभी हम मटेरियलिस्टिक लोगों को कुछ देखते हैं कि अरे कुछ नहीं कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, फोर एग्रीमेंट प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है, क्या है नरक में जाएगा। नहीं प्रभु, कृष्णा का उनके लिए भी प्लान है। आपको उनका गुड साइड देखना है भैया, ये चैरिटी कर रहा है कुछ गुड कॉज के लिए। अनाथ आश्रय में दे रहा है या वृद्धाश्रम में कुछ दे रहा है, या किसी फूड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा है, कहीं एनजीओ को हेल्प कर रहा है किसी। तो कृष्णा इज सेइंग उनको भी मैं अपने फील्ड में ले लूंगा, उनका भी कॉन्शियसनेस एलिवेट होगा, देन दे विल एबल टू रिमेंबर मी।
So do not judge a person. That's the point. We have to respect all. We have to respect those persons also. Because Krishna is also respecting them. And at least they are कर्म फल त्यागम. कर्म फल त्याग के लिए वो रेडी है. ओके. ओके, ठीक है. Now we'll see one document before we go to verse number 12, because verse number 12 is very, very complex verse. Okay. So what is Krishna's letter of love? Krishna's letter of love helps us rise from wherever we are presently are. So Krishna's formula is join the race from your place at your pace. That is the formula of Krishna. Join the race from your place at your pace. This is Krishna's letter of love. So ये डिवोटी है, उनके हार्ट को कृष्णा चाहते हैं. सो 3 लेवल पे है. साधना, जिसमें पहला लेवल है absorbed in Krishna, he is fully absorbed in Krishna. Then fixing mind on Krishna, that is the second level, दोनों. And then सेवा, direct service to Krishna, और स्वधर्मा, doing job as a service to Krishna. So this is in verse number 10. Work for Krishna में 2 चीज आती है. वो होता है, एक होता है डायरेक्ट सर्विस टू कृष्णा, जो आप कर रहे हो, जो डायरेक्टली लॉर्ड से रिलेटेड है, या डूइंग जॉब एज अ सर्विस टू कृष्ण. आप कुछ और कर रहे हो बट यू आर यूजिंग दैट एज अ मीन्स टू सर्व कृष्णा, और गिविंग अ पोर्शन ऑफ दिस टू कृष्ण. सो ये लैडर आपको दिख रहा है यहाँ पर. सो वर्क फॉर कृष्णा, फिक्स माइंड ऑन कृष्णा, एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण. So Bhagavad Gita 12.8 to 10 outlines a ladder of love that extends down from the highest level. So first is offer the mind intelligence to Krishna entirely, thereby living in him. That is 12.8 we saw. Practice sadhana bhakti to fix the mind on Krishna and thereby increase our desire for him. This is 12.9. Then work for Krishna, that is 12.10. This level includes 2 implicit sub-levels. That is a direct work, that is do his work, that is to render service to him. And indirect, offer him the fruits of your work. This is indirect. सो इन प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, दो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा. इन प्रिंसिपल these levels may be discrete, but in practice, as we are aspiring devotees will function at different levels at different times. When we do sadhana, we may be at level 2. When we do seva, we may be at level 3.1. When we work and earn with the intention of donating for devotional service, we may be at level 3.2. तो समझ में आया आपको? तो ये ऑल्दो हमको डिस्क्रीट दिख रहे हैं यहाँ पर ये लेवल, बट हम लोग एज एस्पायरिंग डिवोटीज इन तीनों लेवल पे हम लोग घूम रहे होते हैं. तीनों लेवल पे. कभी कभी आप मायापुर कीर्तन में बैठे हो, एकदम एब्सॉर्ब्ड हो जाता है माइंड होली नेम में, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग उस लेवल पहुंच जाते हैं. फिर साधना कैसे तो टाइम निकाल के साधना करते हैं, तो फिर 12.9 के स्टेज पे आ जाते हैं. फिर कभी कभी डायरेक्ट कृष्ण की सेवा में लगते हैं तो 3.1 में आ जाते हैं. फिर कभी कभी हम जॉब जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, या आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, और फिर कुछ डोनेशन ऐसा इजी हम दे देते हैं, तो 3.2 लेवल में हम वर्क कर रहे हैं. दीज आर डिफरेंट लेवल्स इन विच वी आर वर्किंग. द हायर द लेवल ऑफ अ प्रैक्टिस, द क्लोजर वी आर टू कृष्णा. Still, whatever our present level, by diligent practice, we can gradually attain him. Even if our present level is in a way below our level, still the Gita indicates that we begin practicing devotion from wherever we presently are, and we will rise to higher levels. So that is what is the theme. Okay. So this is what I was telling. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's analysis: internal bhakti, smarana atmika bhakti, then manana atmika bhakti, then abhyas rupa bhakti, that is with internal senses. Then external bhakti is mad artha karma, that is serving Krishna with external senses even if mind is not there. Nishkama karma yoga offered to Krishna. So this is till 11. Now let us go to 12. Very, very tough shloka. This is among the most puzzling shlokas of Bhagavad Gita. 12. Hmm.
ओके। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास ज्ञानाध्यानां विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। ओके, तो पहले हम बताएंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम क्या है इस श्लोक में? यस, रीड द ट्रांसलेशन। If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action. For by such renunciation, one can attain peace. तो अब देखो, हाँ, इससे पहले, जस्ट इससे पहले, श्लोक के पहले लेटर क्या था? सबसे नीचे था आपने निष्काम कर्म योग कर रहे हो, सबसे नीचे, कि आप भगवान को याद नहीं कर रहे हो लेकिन कुछ सेल्फलेस सर्विस कर रहे हो। फिर दूसरा उसके ऊपर था कि कुछ काम कर रहे हो लेकिन वो भगवान का काम है, वो उसके ऊपर था इस लेवल पे। और फिर उसके ऊपर था कि आप साधना भक्ति कर रहे हो। और उसके ऊपर था कि अम, आप मेडिटेट कर रहे हो इंटेलिजेंस से, और उसके ऊपर हाईएस्ट लेवल था कि आप स्मरण कर रहे हो। ये 5 लेवल था, करेक्ट? समझ में आपको ये 5 लेवल जो इससे पहले बताए गए थे? कितनों को समझ में आ गया? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियल लेवल को समझना। जी सेवा स्वधार में बता रहे थे। तीन ही तो और थे पूरी, और सबसे थर्ड वाले का सबसे दो पहले दो- सबसे पहले निष्काम, सबसे नीचे अगर लेटर को देखो, सबसे नीचे निष्काम कर्मी हो गए इधर, कि मतलब आप कुछ तो सेक्रीफाइस कर रहे हो लेकिन अपने लिए, भगवान के लिए नहीं कर रहे हो, चलेगा। सेल्फलेस लेवल था निष्काम कर्मी। उसके ऊपर था कि आप भगवान के लिए काम कर रहे हो। उसके ऊपर था कि आप भगवान को रेगुलेटिव वे में याद करने की कोशिश कर रहे हो। उसके ऊपर था कि आप कंtemplate कर रहे हो भगवान को इंटेलिजेंस से। उसके ऊपर था कि माइंड से आप स्मरण कर रहे हो भगवान। ये लेवल था, ऐसे लेवल ऊपर जा रहा है। पूरी तो अब ये अंगूठा और जो इंडेक्स फिंगर वाले थे वो एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा एक ही तो था। करेक्ट, ये एब्जॉर्प्शन है माइंड के लेवल पे। ओके। और इंडेक्स फिंगर वाला? इंडेक्स वाला इंटेलिजेंस लेवल पे आप कंटेम्पलेट कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो लॉर्ड को। करेक्ट, लॉर्ड का आप ध्यान कर रहे हो इंटेलिजेंस लेवल पे। क्लियर हुआ शुभंकरु? गुरु जी एक बार फिर से बता दीजिए मुझे। ओके, फिर से देखो। सबसे नीचे था सेल्फलेस सर्विस कर रहे हो आप, भगवान पिक्चर में नहीं है यहाँ। ठीक है। दूसरे लेवल पे उसके ऊपर आ रहा है कि भगवान पिक्चर में आ चुके हो, भगवान के लिए आपको सेवा कर रहे हो, डायरेक्ट सेवा कर रहे हो, इनडायरेक्ट सेवा कर रहे हो, लेकिन भगवान के लिए कर रहे हो। तीसरा उसके ऊपर लेवल था कि आप रेगुलेटिव वे में कर रहे हो, मतलब आप भगवान को या फिक्सिंग साधना भक्ति कर रहे हो। उसके ऊपर था कि इंटेलिजेंस से आप कंटेम्पलेट, कॉन्शियस इंटेलिजेंस लगा रहे हो लॉर्ड को ध्यान करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, जिसको हम लोग बोला था मनन आत्मिका भक्ति। और सबसे ऊपर था स्मरण आत्मिका भक्ति, मतलब माइंड के लेवल पे आप एब्सॉर्ब हो। क्लियर? अब ये श्लोक में आते हैं, कृष्णा इस श्लोक में क्या बताते हैं? श्लोक पे आते हैं हम। श्रेयो ही बेटर है ज्ञानम, ज्ञानम इज बेटर देन अभ्यास। तो अभी अभ्यास से बेटर ज्ञानम हो गया है। हम्म तो ज्ञान अभ्यास जो अभी वर्ड यूज हुआ था इससे पहले, वो किस लिए यूज हुआ था? वो भक्ति के रेगुलेटर के लिए यूज हुआ था, भक्ति में रेगुलेशन के लिए। अभी वो बोल रहा है कि वो भक्ति से श्रेष्ठ ज्ञान हो चुका है, भक्ति से श्रेष्ठ ज्ञानम हो चुका है। और ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते, ज्ञानात् ध्यानम विशत, और ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान हो चुका है। हम्म और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म हो गया है। अब मतलब ये अपोजिट हो गया है बिल्कुल, ध्यान से श्रेष्ठ कर्म हो गया है। कर्म फल त्याग ये हाईएस्ट बता दिया इस श्लोक में। और इस त्याग से त्यागा शांतिर अनंतरम, जो कि सबसे लोएस्ट था आपके पिछले वाले में, वो उसको अभी हाईएस्ट बता दिया गया है। और जो हाईएस्ट लेवल पे थे अभ्यास वाले, ऊपर तक तो गया नहीं है इस श्लोक में स्मरण, और वो अभ्यास को लोएस्ट बता दिया गया। समझ में है क्या चेंज हो गया? हम्म अभ्यास को लोएस्ट बता दिया, मतलब ये था, अभी इसको उल्टा कर दिया गया ऐसा। तो कर्म फल त्याग को हाईएस्ट बता दिया गया, और अभ्यास जो कि रेगुलेटिव था, जिसमें आप भगवान को याद कर रहे हो, उसको लोएस्ट बता दिया गया। कितनों को समझ में आया प्रॉब्लम? समझ में आया आपको प्रॉब्लम क्या है श्लोक में? प्रभु क्लियर प्रॉब्लम? ओके, विश्वास पे बोल रहे हैं क्लियर है।
सूर्या ब्रू अपना दिमाग खोज रहे हैं, भैया क्या होता है, क्या है ये? क्योंकि 12 में से 3 ही तो वर्ड यूज किए थे, ज्ञान, ध्यान और कर्म फल त्याग। करेक्ट। तो आप अगर गीता का अगर नेचुरल लो, गीता का नेचुरल में क्या है, कर्म सबसे नीचे है। उसके ऊपर आपने पढ़ा था ज्ञान भी नहीं, ध्यान पढ़ा था आपने उससे पहले। सी जो 6 चैप्टर है वो ध्यान है, परमात्मा लेवल पे ध्यान देना है। कृष्णा ने ध्यान को ज्ञान से ऊपर रखा है। और फिर भक्ति लाया है जिसमें हाईएस्ट है, और इसके बाद ज्ञान आएगा। इसके बाद ज्ञान कृष्णा बताना स्टार्ट करेंगे। अगर भगवत गीता के सीक्वेंस पे जाओ आप, कर्म सबसे नीचे, उसके ऊपर ध्यान बताया है, फिर ज्ञान बताया है कृष्णा ने, और फिर भक्ति हाईएस्ट बताया है। जो भगवत गीता का नेचुरल सीक्वेंस है, जो भगवत गीता बता रहे हैं भगवान। क्लियर हुआ इसको? यहां पर जस्ट उसका अपोजिट है प्रभु। कर्म को हाईएस्ट बताया है, भक्ति को लोएस्ट बताया है, और ज्ञान और ध्यान का भी अपोजिट कर दिया है कृष्णा ने। और ये 12 वाले में भक्ति वर्ड तुम्हें दिखाई नहीं कहीं? कौन से में? एक बार दिखाइए मुझे, वहां यहाँ ज्ञान दिखा। अभ्यास, अभ्यास वर्ड जो है ना, अभ्यास वर्ड, हाँ वो पिछले लिए किस लिए यूज हुआ था? अभ्यास योग करने के लिए ना। जो इससे पिछले श्लोक थे, हाँ, कृष्ण ने अभ्यास वर्ड कहाँ यूज किया है? साधना किस? भक्ति के लिए। साधना भक्ति के लिए यूज किया है। तो अगर आप उसी फ्लो में इस श्लोक को देखो, उसी फ्लो में अगर इस श्लोक को देखो, तो अभ्यास से आप क्या समझ रहे हो कि कृष्णा किसके बारे में बात कर रहे होंगे? जो पिछला बताया अभी, अभ्यास। यस पूरी। करेक्ट। सूर्या प्रभु ने क्या भेजा हमको? अच्छा ठीक है, कुछ तो फाइल भेजा है। तो उस सेंस में कृष्णा ने जस्ट अपोजिट कर दिया है सीक्वेंस को। हम्म। हम्म, ओके ठीक है। कुछ कुछ चल रहा है, सारे डिवोटीज बता रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे आचार्य इस पे क्या टीका देते हैं, क्योंकि हमारे आचार्यों ने बहुत टेक्निकली समझाया है इसको कि कृष्णा गलत नहीं बोल रहे हैं, आपको चीजों को सही से समझना है। हम्म। सो लेट अस सी, पहला पहला प्रभुपाद का रेफरेंस। प्रभुपाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण तीनों ने अलग अलग स्टाइल से इसको दिया है। सो प्रभुपाद का पहला एक्सप्लेनेशन है, प्रभुपाद ने रेफरेंस ही चेंज कर दिया है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये श्लोक आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। हम्म, ये जो श्लोक है इस सीरीज में नहीं आता है। तो एक एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद, परपट में हमें पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा प्रभुपाद के परपट को। तो कभी कभी आप किससे बात कर रहे होते हो और फिर बोलते हो ही सेड लाइक दिस, अब वो कंफ्यूज है, ही मतलब कौन है, किसके लिए बोल रहे हो ही? कभी कभी आप बात कर रहे होते हो कुछ के बारे में, कैंप ऐसा चल रहा है, वो ऐसा चल रहा है, और फिर अचानक बोलते हो ही सेड दैट ही विल कम बट ही डिड नॉट कम। अब बोले मतलब ही कौन, किसके बारे में बात हो रही है? बोले मतलब हाँ, ही मीन्स दिस पर्सन, वो मैं उसके बारे में बात कर रहा था। कभी कभी आप बात कर रहे हो तो आप कुछ बोलते हो, नहीं मैं आपसे आपके बारे में बात नहीं करता, मैं उसके बारे में बात कर रहा था, ऐसा हो जाता है। तो क्योंकि रेफरेंस ऑफ टॉक अलग है। मुझे याद है एक बार मैं ओला में बैठा था, तो आगे एक ड्राइवर बैठा हुआ था, तो उसने बोला सर ओटीपी बताइए, तो मैंने ओटीपी बता दिया। फिर बोला सर किधर जाना है, मैं कहा, इधर जाना है, तो किस रास्ते से जाएंगे, ऐसे करके बात चल रही थी। फिर अचानक उसने बोला "ए, ए, घटिया कहीं के", ऐसा करके बोला, घटिया कहीं के, बेकार। तो मेरे को शॉक लग गया, यार ये क्या बोल रहा है, घटिया कहीं के, बेकार हैं। तो मैंने बोला एक्सक्यूज मी सर, मतलब आप क्या बोल रहे हो? अरे सॉरी 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 सर, आपको नहीं बोल रहा हूँ सर, एक्चुअली मैंने ईयरफोन लगा के रखा है छोटा सा। तो देखते हो कान में, वो मैं कॉल पे था, उसने कुछ बोला तो मैं उसको बोल रहा हूँ घटिया कहीं के। तो मैंने बोला हो ठीक है, मेरे बारे में नहीं हो रही थी, क्योंकि इनिशियली वो मेरे से बात कर रहा था ना, ओटीपी मांग रहा है, कहाँ जाना है, क्या करना है। फिर अचानक वो बोलता है घटिया कहीं के। तो फिर मैं बोला भाई मेरे को क्या बोल रहा है? बोला नहीं सर आपको नहीं बोल रहा हूँ, वो मेरे कान में ही देखिए लगा हुआ है, ईयरबड लगे हुए हैं, मैं बात कर रहा था एक लोग से, उसको मैं बोल रहा था। तो प्रभात यहाँ बोल रहे हैं कि देयर इज अ चेंज इन रेफरेंस। सो अभ्यास जो यहाँ पर बात हुई है, हम्म, वो बात हुई है जो जनरल प्रैक्टिस हम करते हैं। ये अभ्यास साधना भक्ति को डिनोट नहीं करता, ये अभ्यास जनरल प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं उसको डिनोट करता है। प्रपात वहां पर उसको रेफरेंस लेके आते हैं। तो जब आप उसको रेफरेंस लेते हो कि ये अभ्यास साधना भक्ति वाला पार्ट अभ्यास नहीं है जो कृष्णा अभी तक बोलते जा रहे हैं, फिर आप ये बोलते हो ठीक है,
उससे बड़ा फिर तो ज्ञान है, उससे बड़ा फिर तो ध्यान है। और कर्म त्याग, तो प्रभात कर्म त्याग को बोलते हैं निष्काम कर्म त्याग, जो कृष्ण ने 6 चैप्टर्स में बोला है। तो वो सही में हाईएस्ट है, वो सही में हाईएस्ट है फिर। सो प्रभात अभ्यास के रेफरेंस को चेंज कर कर, कि वो साधना भक्ति वाला अभ्यास नहीं है, वो एक जनरल प्रैक्टिस है जो लोग करते हैं, कुछ तो वो करते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। उससे अच्छा है आप नॉलेज कल्टीवेट करो, उससे अच्छा है कि आप ध्यान करो भगवान पे, और उससे अच्छा है कि आप निष्काम कर्म योग करो भगवान के लिए। तो उस केस में ये जो सीक्वेंस है बिल्कुल सही है। समझ में आया आप सीक्वेंस? ये पहला है प्रपात जो बता रहे हैं, अभ्यास योग के रेफरेंस को चेंज करके, अभ्यास के वर्ड को रेफरेंस को चेंज करके। कितने को समझ में आया पहला चीज? समझ में आया? ओके, क्लियर। ओके, नाउ लेट अस गो टू सेकंड रेफरेंस गिवन बाय शिला बलदेव विद्याभूषण। ओके, शिला बलदेव विद्याभूषण क्या कह रहे हैं? कि यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है श्रेयो और विशिष्यति, श्रेयो विशिष्यति हेरार्की दिखाने के लिए नहीं है, वो ये दिखाने के लिए है इज इजियर टू परफॉर्म फॉर द अनक्वालिफाइड। तो अभी तक कृष्णा का जो सीक्वेंस चल रहा है वो नीचे लेवल पे आ रहा है, मतलब जो अनक्वालिफाइड है, इस लेवल के लिए क्वालिफाइड नहीं है तो इस लेवल पे करो, इस लेवल के लिए क्वालिफाइड नहीं है तो इस लेवल पे करो, इस लेवल के लिए क्वालिफाइड नहीं है तो इस लेवल पे करो। तो यहां पर जो श्रेयो और विशिष्यति वर्ड यूज हुआ है, बलदेव विद्याभूषण उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि जो अनक्वालिफाइड है, अब उनके भी नीचे हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये वाला मेथड अच्छा है जो अभी मैं बताने वाला हूं। हम्म, जो मैं बताने वाला हूं वो ज्यादा अच्छा है। हम्म, क्यों है? क्योंकि जो अभ्यास है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल है। उससे अच्छा है आप ज्ञान लेवल पे आओ, अनक्वालिफाइड को बोल रहे हैं आप ज्ञान लेवल पे आओ। उससे अच्छा है कि आप ध्यान लेवल पे आओ। उससे अच्छा है कि आप कर्मफल त्याग पे आओ। तो कर्मफल त्याग आपके लिए बेस्ट है। आपके लिए, आपके लेवल पे कर्मफल त्याग बेटर है। तो ये जो सीक्वेंस बताया गया है वो एक अनक्वालिफाइड के लिए बताया गया कि आपके लिए अभ्यास नहीं है, उससे बेटर है आप ज्ञान के लेवल पे जाओ, उससे बेटर है आप ध्यान के लेवल पे जाओ, उससे बेटर है आप कर्मफल त्याग के लेवल पे जाओ। तो बलदेव विद्याभूषण ने सीक्वेंस को एज इट इज रखा है, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट नहीं किया है। जैसे प्रपात ने उसको आउट ऑफ द कंटेक्स्ट लेके किया है कि अभ्यास का मीनिंग अलग लेके किया है, इन्होंने अभ्यास ज्ञान और ध्यान कर्म योग का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं लिया। बस श्रेय और वशिष्ठ के बोला है कि जो अनक्वालिफाइड है उनके लिए कृष्णा ने बोला है आपके लिए कर्म फल त्याग ज्यादा इजी होगा करना, बजाय अभ्यास करना। हम्म Thus, this verse refers to a yoga ladder of chapter 1 to 6, which eventually leads to bhakti. तो ये चैप्टर 1 to 6 में जो योगा लेडर है उसी को डिनोट कर रहा है, जो अल्टीमेटली भक्ति को लेके जाता है। अब कितनों को बलदेव विद्याभूषण वाला समझ में आया? बलदेव विद्याभूषण का कितने को समझ में आया? बलदेव विद्याभूषण का। ओके, नाउ लेट अस गो टू विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उन्होंने इसके ऊपर क्या विशेष बोला है? कृष्ण 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 कृष्ण। ओके, सो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सोल्यूशन टू 12.12 पजल, इस पजल पे उनका तो उन्होंने ज्ञान और ध्यान का जो मीनिंग है उसको बदल दिया है। ज्ञान और ध्यान का जो मीनिंग है उसको बदल दिया है। तो ज्ञान जो है उसको उन्होंने किया है मनन आत्मिका भक्ति, जो उन्होंने 12.8 में बताया था इनिशियल लेवल में। ये जो ज्ञान लेवल है जिसपे आप स्मरण करते हो भगवान को, वो लेवल है जिसकी बात हो रही है। तो यस, वो लेवल तो अभ्यास से ज्यादा है ही, वो लेवल है ही, क्योंकि ज्ञान मतलब आप इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हो, इंटेलिजेंस से आप कंटेम्पलेट कर रहे हो, आप उस पर स्पेकुलेट करते हो, और आप कॉन्शियस हो उसको, कृष्णा को रिमेम्बर करने में। तो यस, वो मेथड ज्यादा बेटर है अभ्यास से। 12.9 से ज्यादा बड़ा है ज्ञान, मना आत्मिका, मनना आत्मिका भक्ति 12.8 में जो बोला गया है। और ज्ञान से ऊपर है ध्यान। ध्यान में मतलब आप माइंड से ध्यान करते हो, तो वो हो गया स्मरण आत्मिका भक्ति।
तो कि जो कि ज्ञान से ऊपर है, मनना आत्मिका से ऊपर था 12.8, रिमेम्बर ना, इनिशियल से सबसे टॉप वाला स्मरण आत्मिका भक्ति। सो वो जो भक्ति है उन्होंने उसको इक्वेट किया है किससे, भाव भक्ति से। ध्यान इज इक्वल टू भाव भक्ति, उस भक्ति से। बिकॉज इन भाव भक्ति देयर इज नो डिजायर फॉर भुक्ति और मुक्ति। तो नो डिजायर वो क्या है, कर्म फल त्याग, जिसमें कोई डिजायर नहीं है। हम्म कोई डिजायर नहीं है तो आपको क्या मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा। सो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या बोला इस श्लोक में, कि पहले के 2 लाइन में, अगर आप इस श्लोक को देखोगे, पहले के 2 लाइन में श्रेयो और विशेषति वर्ड यूज हुआ है, जो कि हायरार्की दिखा सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि वो हायरार्की दिखाने के लिए यूज हो सकता है। जैसे श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासज, अभ्यास से बड़ा क्या है, ज्ञान है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यति, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। लेकिन दूसरी तीसरी लाइन में इनमें से कोई भी वर्ड यूज नहीं हुआ है, ना श्रेयो वर्ड यूज हुआ है, ना विशिष्यति वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब ये लीनियर कनेक्शन दिखाता है कि आपको ध्यान से कर्मफल त्याग मिल जाएगा। ध्यान से कर्मफल त्याग मिल जाएगा, यानी ध्यान के लेवल से आप कर्मफल त्याग मतलब नो डिजायर फॉर भुक्ति और मुक्ति में पहुंच जाओगे ध्यान से। और लास्ट लाइन, त्यागाक शांति अनावृतम, त्याग से आपको शांति की प्राप्ति होगी। सो इसलिए देखो नीचे जो है, अभ्यास से ग्रेटर है ज्ञान, समरी अगर आप देखो नीचे, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान, जो बिल्कुल सही है। लेकिन उस ध्यान से आपको क्या मिलेगा, भगवान का स्मरण करने से क्या होगा, आप भाव भक्ति लेवल पे पहुंचेंगे। भाव भक्ति लेवल में क्या होता है, आपको नो डिजायर फॉर भुक्ति और मुक्ति, जो कि त्याग का लेवल दिखा रहा है। कर्म फल त्याग लेवल, उससे आपको क्या मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा। तो ये ग्रेटर लेवल नहीं है, ये लीनियर लेवल है। इससे आपको ये मिलेगा, इससे आपको ये मिलेगा। क्लियर हुआ कितने को, अब शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का क्लियर हुआ, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का क्लियर हुआ। ओके, सूर्या प्रभु को क्लियर हो गया, विश्वास प्रभु को क्लियर। सो ये है पूरा कॉम्प्लेक्स ये वाला वर्स। 3 आचार्यों ने, 3 हमारे शिला प्रभुपाद ने एक रेफरेंस लेके किया है, शिला बलदेव विद्याभूषण ने 2 वर्ड्स के मीनिंग को थोड़ा सा देख के किया है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने 2 अलग मीनिंग को लेकर इस वर्स का पजल सॉल्व किया है। अदरवाइज ये तो बिल्कुल अपोजिट था, ऐसे था। मतलब कृष्णा एक लेटर इधर बता रहा है, दूसरा लेटर इधर बता रहा है। यस प्रभु। Can you once again explain the Vishnu Chandra Thakur? ओके, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का बहुत सिंपल एनालिसिस है। वो बोल रहे हैं अभ्यास तो साधना भक्ति है, ज्ञान मतलब अपना इंटेलिजेंस आप लगाते हो उसको समझने के लिए, मेडिटेट करने के लिए ज्ञान यूज करते हो, यानी इंटेलिजेंस। तो वो क्या हो जाता है, वो मननम आत्मिका भक्ति हो गई, जो 12.8 में बोला था कृष्णा ने। और फिर ध्यान के लिए आप माइंड का यूज करते हो, ध्यान के लिए, तो वो हो गया स्मरण आत्मिका भक्ति, जो कि मनन आत्मिका भक्ति से ऊपर है। तो ये बिल्कुल सही है, सीक्वेंस बिल्कुल सही है। अभ्यास से ऊपर मनन आत्मिका भक्ति है, उसके ऊपर स्मरण आत्मिका भक्ति है, तो ये लेवल सही है। तीसरी लाइन में बताते हैं कि ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है, श्रेयो और विशिष्यति। ये वर्ड यूज नहीं हुए हैं तीसरी लाइन में। इसका मतलब है कि जो ध्यान से है उससे आपको त्याग मिलेगा, जो बिल्कुल सही है। जब आप स्मरण लेवल पे होगे, सो देन यू विल हैव नो इंटरेस्ट फॉर भुक्ति एंड मुक्ति, आपको इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। तो कर्म फल त्याग आपके लिए बिल्कुल ईजी है, आप सब कुछ त्याग सकते हो। उससे आपको क्या हो जाएगी, शांति का अनुभूति हो जाएगी। सो दैट इज श्रील विश्वनाथ पी ठाकुर। क्लियर कंचन प्रो? Yes, Guruji. Thank you. Okay, so any other doubt, you can read the purport of Srila Prabhupada. So that is simple purport only. Prabhupada is mentioning that. I have already mentioned that. Okay, so we'll end here. Any doubts now in this? Only 12.12 was little mysterious. Otherwise, others were very simple. Yes, Sumant Prabhu. मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। मुझे 8 to 11 तक जो हमने इतना डिटेल में डिस्कस किया, मुझे इसमें हैप्पीनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कब आता है? सो उसके लिए आपको एनओडी पढ़ना पड़ेगा। एनओडी में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है भक्ति का, वो क्या है, शुभदा और क्लेशाग्नि। ये दो दो कैरेक्टरिस्टिक आते हैं भक्ति के बिगिनिंग में, जब आप भक्ति करना स्टार्ट करते हो।
So Shubda means it will be auspicious, life will be auspicious, it begin to, and Kleshagni. So जो क्लेशाग्नि है वो आपको हैप्पीनेस देता है, वो आपको हैप्पीनेस का परसेप्शन देता है कि नाउ आई एम हैप्पी। सो वो हैप्पीनेस का जो रेफरेंस है, वो हैप्पीनेस का रेफरेंस कृष्णा होते हैं डिवोटीज के लिए। जनरली हमारा हैप्पीनेस का रेफरेंस होता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और मुझे फील होना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन एक डिवोटी के लिए जो हैप्पीनेस का रेफरेंस होता है वो कृष्णा है, कि विल कृष्णा बी हैप्पी बाय डूइंग दिस। तो आप शिला प्रभुपाद के अगर पहले 6 चैप्टर्स के कुछ पर्पस पढ़ो, प्रभुपाद उसमें बहुत ज्यादा बार, कई बार बोले कि अ डिवोटी इज कंसर्न्ड अबाउट हैप्पीनेस फॉर कृष्णा, व्हाट इज हिज हैप्पीनेस और नॉट, वो बात की बात है। जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर एक सॉन्ग लिखते हैं, आत्मनिवेदना वाला सॉन्ग, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें तुम्हारा सेवाया दुख होए जता से तो अ, परम सुख, किसको याद है ये सॉन्ग? बहुत अमेजिंग है ना ये। ऐसा करके भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, तुम्हारा सेवाए दुख होए जोता से ही तो परम सुख। तो ये जो डिवोटीज के लिए जो सुख की डेफिनेशन है, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। सो हरे कृष्णा। सो यस, हमारे डिवोटीज के लाइफ में दुख आ सकता है, बट हिज रेफरेंसेस कि कृष्णा कैसे खुश होंगे, मैं इस लेवल, मैं अभी के सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करूं, कि कृष्णा मेरे उस रिएक्शन से खुश होंगे। हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन दैट गुरु एंड कृष्णा विल बी हैप्पी बाय दिस। सो इफ दैट इज हैपनिंग, देन दैट इज सुप्रीम हैप्पीनेस फॉर अ डिवोटी। क्लियर उमंग को? यस गुरुजी। Thank you. Okay, so we'll end over here. Thank you so much, all devotees. So tomorrow we'll end. Tomorrow's session is very, very simple. The qualities which all of you have, I just have to recite those qualities. And I have to just tell this quality is with this devotee, this quality is with this devotee. And all of you have all those qualities. But tomorrow we'll see all those qualities. Yes, Aman, any last 1 minute question? तो जी ये योगा लैडर में ये कर्म योगा क्या क्या होता है, और लाइक निष्काम कर्म योग, ये सकाम कर्म योग, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप बता देंगे? ओह, आपने तो चैप्टर 1 to 6 का समरी पूछ लिया। ओके ओके, ठीक है, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके। ओके प्रभु। बेसिकली 2 टाइप के कर्म योग हैं, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग हैं। तो दोनों में ही उन लोग को एक्चुअली रेफरेंस नहीं पता चलता कि कृष्णा सुप्रीम है। दे आर सरेंडरिंग टू सुप्रीम, दे आर थिंकिंग दैट समबडी इज सुप्रीम, वी आर सरेंडरिंग इट टू सुप्रीम। अगर कृष्णा रेफरेंस में आ जाता है तो वो भक्ति योग बन जाता है, बस यही डिफरेंस है। तो उनको पता नहीं रहता, दे आर डूइंग फॉर समथिंग, कोई तो सुप्रीम है, हम ये कर रहे हैं, उनको एक क्लियर आइडिया नहीं है कि कौन सुप्रीम है। बट फॉर सुप्रीम वी आर डूइंग सरेंडरिंग। As soon as they come to know that Supreme is Krishna, I am doing for Krishna, it is bhakti. Very simple. Hare Krishna.